which mainly covers of the load flow study. In your BTech classes, some of you are from the TPD branch, some of you are from such university where this course, that was the computer application to the power system, was not covered in the BTech classes. So although something, it is written as a review of the load flow, the previous contents, but here we will describe the load flow study in detail. So what is the, as I told in the previous class, that load flow study is the steady state analysis. It is also called a power flow analysis. Steady state analysis means when load is fixed, at that time, what is the RMS value of the voltage, what is the RMS value of the current, what is the power angle, what is the active power, what is the reactive power at the buses, what is the line flows. So this is the means when change is not there, load is fixed, at that time what are these values? And these values means the RMS value, not the instantaneous value, not the average value. Instantaneous value is going to be changed. Say V is equal to Vm sin omega t, at every state of time voltage is going to be changed. So we are not concern, or we are not discussing about the instantaneous value, that the value at every instant of time it is changing, it is instantaneous value, but RMS of that is fixed. So we in all the such study, we do the we take care of the RMS value. So and we have to obtain these values, means P, Q, V delta. What is the P active power? What is the Q reactive power? What is the volta? What is the power angle? Power angle is, what is the power angle? It is the angle between the rotor and rotating flux in the stator. Say if there is a generator connected at some bus, so angle between rotating flux is rotating at the stator, and the angle of the rotor, means angle difference between the two is the power angle, and it depends upon how much power we are taking out. If we are taking the more power, the angle will increase, and it increases, that you might be studying in the stability analysis, that P is equal to E V Y X sine delta, means if you take the more power, delta will increase, but you can't go beyond 90 degree, means from any generator we can take a certain amount of power. According to the rated, we can take the full power, that is the maximum power, at some power angle. So that power angle should be within a permissible limit also. As we know, voltage should be the permissible limit, and the input power should be equal to the input active power or reactive power. Input power should be equal to the reactive power, and power angle and voltage should be within a specific limit. This is the these are the conditions for any system to work. Now, how to obtain this? When we know power system is a very complex one. Very complex means the number of, in fact, so far we have studied in the power system analysis of beta classes. Sometimes the sending and voltage is this, sending end power is this, what is the receiving end side, different parameter. So in that case, and it is sometimes pi network, T network. In those study, and what is the value of inductance, capacitance of the transmission line, in those we have the two bus system. But in fact, practically the power system has number of buses. Say we consider the whole state, say power utility of the Haryana, then we will find number of buses. Number of buses can be as high as 50, 60, and number of transmission line can be further high. Means each bus may be connected to another bus, or sometime more than two buses. So if the number of buses are say 50, number of lines can be, means number of lines can be more than the buses. Why? It is not always there that transmission line is connected between the two bus. From say example, from bus number 5, there can be two transmission line, one going to the bus number 10, another going to the bus number 11. So number of lines can always be more than the number of buses. Now for certain value of
for certain value of power taken, that is the load connected, there will be voltages, there will be currents, there will be power angle, there will be reactive power, active power at different buses. So if the load increases, all these values will increase. Now, when we want to solve, if okay, Sangeeta, welcome. So when in normal case, how do we solve a network? Because power system is also a network. It is a big network, and earlier we know how to solve the network. In the network, there are number of nodes. Here we call nodes are nothing but it is like a bus. In the power system, it is a bus from where number of lines are connected or number of transmission lines are going. In case of a normal network, we call it as a node from where number of trees, branches and links are connected. So in that case, if we do the similarities, node is same as of the buses here. Now, so in the normal network, we solve any network can be solved. How? By say nodal analysis. Nodal analysis. If the load connected, if the load is of admittance type in nature, if the load is of admittance type, then how do we solve? Suppose there are 5 nodes or हर एक node number 1, 2, 3, 4 and the branches are connected between them. Then how we solve? क्या करते हैं? Nodal analysis क्या होती है? Say voltage at bus number say V1 minus V2 divided by the impedance, then V2 minus V3 divided by impedance. Sum of them should be, means at every node sum of the current should be equal to 0, so that we do the nodal analysis. But here in the power system, we don't have the load in the form of admittances. Since we don't have the load in the form of the admittances, we cannot apply the nodal analysis here. Load, if you see, load of any industry, what is the load of any industry? कैसे कहते हैं? इतना नहीं कहते इतना resistance है, इतना reactance है, या इतना admittance, इतना conductance है, ये नहीं कहते. इंडस्ट्री में जब लोड होता है तो क्या कहते हैं? इतना एक्टिव पावर, इतना रिएक्टिव पावर. ओके, सो लोड इन द पावर सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ द active power or reactive power. It is not so. We cannot solve the things on the basis of nodal analysis. Now, what we do here in the load flow study, we here at each bus there is a maybe at some of the buses generator may be connected. देखिए आप पावर सिस्टम नेटवर्क ले लें, पावर सिस्टम नेटवर्क आपने सपोज हरियाणा का ले लिया. सो एज आई टोल्ड देयर आर नंबर ऑफ बसेस. हर एक बस पे या तो लोड कनेक्ट होगा या जनरेटर कनेक्ट होगा या कुछ भी नहीं होगा. सो ईच नोड मे कंप्राइज ऑफ आइदर जनरेटर, लोड और नथिंग, मींस neither load nor the generator. So if at ith bus, if ith bus the input power is PGI, we call it as a generator. If generator is connected, then we can say active power input is PGI and reactive power is JQ. G means generator, I means ith bus. If at ith bus some generator is connected, then we can say net power will be equal to PGI plus JQGI. ओके, तो किसी भी बस पर आपका जनरेटर कनेक्टेड है तो हम कहेंगे इतना पावर जनरेट कर रहा है, एंड दैट जनरेटेड पावर इज गोइंग टू द नेटवर्क. एट द सेम टाइम एट ईच बस देयर कैन बी सम लोड.
suppose some load is also connected at the ith bus, then we can say it can be represented as a like this SLI PLI plus JQLI. मतलब क्या हुआ, load, L means load, active power is PL and reactive power is this, so this is the complex power, complex load that is being taken. So this is the load. Now at some bus, ith bus पे आपका जनरेटर भी कनेक्टेड है और लोड भी कनेक्टेड है. सो नेट इंजेक्टेड पावर टू द नेटवर्क, जितना आपका जनरेशन में सपोज 100 मेगावाट जनरेट हुआ और 90 मेगावाट उसी बस पे कनेक्टेड है, तो 10 मेगावाट कहाँ जाएगा, वो नेटवर्क में चला जाएगा. सो PGI 100 minus 90, so this is a 10 megawatt. Similarly reactive power, say it is a 50 MVAr and say it is a 40 MVAr, मतलब 50 MVAr जनरेट हो रहा है और 40 MVAr आपका वहीं उसी बस पे कंज्यूम हो जा रहा है. तो ये 10 MVAr कहाँ चला जाएगा, so this will go to the network. तो नेटवर्क में PI minus JQ means now we can say ith bus का, and we can say it is a injected power. ith bus, injected power at the ith bus will be given by PGI minus PLI, QGI minus QLI, J times, and so this is written like this. Means generated power minus the load power. Similarly here, so net it is the at ith bus this much amount of power is going to the network. Okay. Now suppose करिए, as I told, now number of buses are there in the network. Number of buses are there. Say it is a 1, 2, 3, 4, 5. Here there are 4 buses, but it can be a number of buses, say 100 buses. So once we solve it, once we describe this, later on we can see, you can understand any number of buses are there, we can solve the problem. Although generators are not, these are the generator S1, S2, S3, S4. These are okay. Not this S1. We can say it is a generator G1, G2, G3, G4. These are the generator. Although here we have shown generators are connected at all the buses, but in fact generators are not connected. Generators are connected at few buses, and on few buses only loads are connected. So what we considered here, at each bus there are generator as well as load. At each bus generator and load, generator load, but and generator minus load, net power is going to the injected. But it may happen that either generator is, if generator is not connected, we can say this PG, suppose generator is not connected here too, so we can say PG2 is 0 and QG2 is 0. So only minus PL and minus QL will be there here, means injected power, only load will be there. Minus P means it is not injecting, it is taking the power. तो ये माइनस हो जाएगा. इट मीन्स sometime it may happen the load is not connected. PLI at second number 2, at bus number 2, PL2 and QL2 is 0, means load is not connected. Only PGI and QGI is, PG2 and QG2 is there, means only the generator power is going. So here we have taken injected power at each buses, but it may happen either injected power can be only generation, or injected power can be only load, or it can be 0, neither generator nor load. So this is also 0, this is also 0. So it may happen both are 0. So in that case, this SI injected power will be 0. So in that case, say S3 can be 0. So any depend, but here in this example we have taken all, but some of them can be 0 also. Okay. Now this is a transmission line, means any bus can be connected to any other bus. बस नंबर 1 से एक ट्रांसमिशन लाइन गया, इस पे कनेक्टेड हो गया. सिमिलरली बस नंबर 1 से एक ट्रांसमिशन लाइन बस नंबर 3 पे कनेक्टेड हो गया. सो दीज आर द ट्रांसमिशन लाइंस. इट कैन बी, सो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ बसेस. एंड ईच ट्रांसमिशन लाइन, अब जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, एज आई टोल्ड, ईच ट्रांसमिशन लाइन हैज इट्स रेटिंग. रेटिंग मींस कितना पावर इस पे ट्रांसफर हो सकता है. जैसे जनरेटर का अपना रेटिंग है. ये सपोज अगर आपका जनरेटर रेंज है तो हमारे so ये means
but anyway, this is not we have discussion. We have to discuss the node. And as this previous year course of BTech, that each transmission line can be either pi network or T network, or if it is short transmission line, then simply like this, simply having its value of resistance and reactance. So, but here we consider all the lines are, even if it is a long transmission line, depending upon the length of the line, we classify line as a either short transmission line or long transmission line, or pi equivalent middle transmission line, or sometime long trans. Even if it is a long transmission line, then okay, if we have the length of the line is high, that is more than 250 kilometer, then also it can be represented as a pi equivalent, otherwise a pi representation. So each line here, in each line we have represented in the form of a pi network. Here देखिए एक ये line है, इसको आपका ये pi network, resistance, reactance and capacitance means admittance here. So it is a pi representation. So even if it is short transmission line, then this admittance will be zero, means capacitance will be infinite or admittance will be zero. So admittance is zero, it means impedance is infinite. So you can say then short transmission. So it means each line, this line is represented by this pi network, this line is represented by this pi network, this line is represented by this network. So in this way, each line can be represented by a pi network as shown here. Is there any question up to this? Hello? No, sir. Okay. So in this way, we represent, because if we want to solve any problem, we have to represent the network. तो हमने power system को इस form में ऐसे represent कर लिया. Now, sometime what happens? देखिए, ऐसा ही नहीं होता. Generator and buses. This is a generator, buses and line. Normally, what happens? There is a generator and there is a transformer. Means power is generated say 33 kV or sometime 25 kV. And it is step up to 66 kV or 110 kV or higher, 220 kV. So here there is a transformer which is step down. So if we convert on per unit basis, if we convert everything on per unit basis, देखिए power system or power flow analysis, it is performed on per unit basis. Per unit basis का मतलब क्या है? We convert it or we divide everything on with its rating. अगर suppose ये 100 MVA है, 100 MVA जनरेटर को हमने बेस मान लिया, तो अगर ये 100 by 100 we will call it is 1 per unit. अगर इसका 50 MVA, so 50 by 100 will be covered as a 0.5 per unit. तो हमने पर यूनिट कर दिया. सिमिलरली वोल्टेजेस अगर आपका सपोज 110 kV को पर यूनिट मान लिया, सो on transformer, suppose transformer is connected here and it is on one side it is 33 kV, another side it is 110 kV. So 33 kV will be per unit base on this side and 110 kV base on another side, this side, higher side. तो इधर 110 को 1 पर यूनिट कहेंगे, इधर 33 को kV को 1 पर यूनिट कहेंगे. तो इस तरह we convert everything on the per unit basis. तो ये transformer reactance है XT. XT is the reactance of the transmission line that is again converted into per unit. Means इस side reactance को 33 kV से के accordingly और दूसरी साइड में 110 kV के accordingly उसको देखेंगे, then it is converted into per unit. तो ट्रांसफॉर्मर की जो रिएक्टेंस है XT. Now the reactance of the line, देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी रिएक्टेंस ये रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस. Impedance, suppose this impedance is resistance plus reactance, so it is impedance. In addition to this, if the transformer is connected here, it will have the reactance XT. This XT is added here. जो भी XT थी इसमें ऐड कर दिया, so that it will transformer is not need to be represented separately. तो ये इसके अंदर ऐड हो गया. Suppose इस लाइन पे यहाँ ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है, so this reactance will be added here and similarly the other places. तो ऐसे ये इसका ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर दिया, बिकॉज वी वांट टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क, द पावर सिस्टम नेटवर्क इनटू अवर नॉर्मल नेटवर्क हियर. तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में. नाउ इफ द देखिए नॉर्मली क्या होता है,
Normally अगर ये ट्रांसफॉर्मर है, पावर जनरेशन इज एट 33 kV, देन पावर ट्रांसमिटेड ऑन दिस साइड इट इज ए 110 kV। तो 33 kV को हमने यहाँ बेस माना है और 110 को इधर बेस माना है, एंड ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज 33/110। 33/110 30 मीन्स अगर सपोज करिए 3300 टन इस साइड में और 33,000 टन साइड में और 110,000 टन इस साइड में, और हमने इधर 33 kV इधर 110 kV, तो ये पर यूनिट सिस्टम में नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा V1 और V2 मतलब इस साइड का वोल्टेज इस साइड का वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द टर्न्स रेशियो मेंटेन करेगा। बट sometime the transformer is used as a tape changing transformer। देखिए आपने देखा होगा कि वोल्टेज स्टेबिलिटी या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम कभी कभी टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर भी यूज करते हैं। ओके, इफ वी यूज द टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर where turns ratio is not equal to the rated voltage of both the side। देखिए नॉमिनल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि नॉमिनल रेशियो 33 kV 110, 33 kV प्राइमरी 110 ऑन सेकंड kV, उसी के अकॉर्डिंगली टर्न्स रेशियो है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिएक्टेंस जो उसकी एक्सटी होगी वो सिंपली ऐड हो जाएगी। बट अगर हमने वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ए नॉमिनल ट्रांसफॉर्मर and ratio is not N1 N2 is not equal to the V1 and V2, then or because with the help of turns ratio we indirectly controlling the voltage, in that case we cannot simply write per unit reactance of the transformer we can add here, simply नहीं इसमें add होगा, then we have to convert it। तो ये भी एक suppose now for example, because first of all what we are going to do, we are going to represent the network। once we are able to represent the network, then we can start solving it। okay, so say this is a ith bus, this is a jth bus, and this is a transformer। here transformer is connected, where turns ratio on this side it is a to 1, turns ratio is a to 1, means N1 by N2 is equal to a, so it is a turns ratio and it is not the nominal transformer। nominal transformer मतलब अगर this voltage और this voltage को divide करें तो turns ratio उसकी equal नहीं है, then it is a nominal transformer। उस केस में हम अगर nominal होता तो इसकी जो भी reactance थी वो simply इसके साथ ऐड हो जाती, but here it will not be there। ये केस यहां नहीं होगा, इसलिए इसको हमने सेपरेटली लिया। देखिए नाउ इस तरह है। नाउ व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इनटू दिस, करंट फ्लोइंग इनटू दिस हियर, दिस विल बी दिस वोल्टेज, करंट इसमें कितना जाएगा दिस वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज था इसका वोल्टेज ऑन दिस साइड, मींस ये वोल्टेज ये हो गया इस साइड का सेकेंडरी प्राइमरी साइड वोल्टेज, सेकेंडरी साइड वोल्टेज है वीजे का, दिस वोल्टेज इज वीजे, दिस वोल्टेज रिफर्ड ऑन द प्राइमरी साइड अगर करेंगे तो क्या होगा, रिफर्ड ऑन दिस साइड करते हैं तो टर्न्स रेशियो के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस वोल्टेज अगर वीजे है तो दिस वोल्टेज रिफर्ड ऑन दिस साइड विल बी ए वीजे। इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ, ये चीज क्लियर है या नहीं है? यस सर। हाँ, ओके। सिमिलरली एडमिटेंस ऑन दिस साइड, इफ यू रिफर्ड ऑन द प्राइमरी साइड दिस विल बी दिस बाई टी बाई ए स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो एडमिटेंस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड की एडमिटेंस अगर हम प्राइमरी साइड में रेफर करें तो इट विल बी डिवाइडेड बाय टर्न्स रेशियो स्क्वायर, तो इट विल बी देयर। तो इट मींस दिस आईटी, इसमें जो करंट जाएगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपीडेंस, नॉर्मली यही होता, लेकिन हमने इन दोनों टर्म को प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया। सो दिस इज आईटी, नेट करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस इज गिवन बाय दिस। इसको अगर ओपन करेंगे सो इट इज vi by a vi by t by a square, this a and a cancel, this equation will be there। now similarly current flowing from this side, इस साइड से करंट it जा रहा है, इस साइड से करंट it dash, so this current is say it dash। so अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, this voltage is vj minus this voltage referred on this side। अगर ये vi है इसको हमने इस साइड में रिफर करेंगे सो vi by a। ओके, जैसे हमने यहां किया था, इसमें इधर a था इसलिए इसका
मल्टीप्लाई हो गया, ये हम अपोजिट जा रहे हैं तो 1/a होगा, क्योंकि ये a to 1 है, वी कैन से 1 ऑन दिस साइड, इसको डिवाइड कर सकते 1/a ऑन दिस साइड। तो दिस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस एडमिटेंस, बिकॉज ये वाली वोल्टेज, ये वाली एडमिटेंस तो ऑलरेडी इधर ही है, इसको रेफर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज ऑन द जे साइड। तो ये yt हो गया। इसको भी जब ओपन करेंगे, सो vj इंटू yt एंड vi इंटू yt बाई ए, vi इंटू yt बाई ए, ये दो इक्वेशन बन गया। ओके, नाउ these two equations if you compare with this, देखिए हमने क्या किया था, पहले जो ट्रांसमिशन लाइन थी, जो सिंपल ट्रांसमिशन लाइन थी, इफ यू सी दिस, ये जो था ना, ये पाई नेटवर्क, एक ये ट्रांसमिशन लाइन तो था, हमने इसको पाई नेटवर्क में कन्वर्ट किया था। लेकिन उस केस में अगर ये नॉमिनल ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो ये कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। हम अगर नॉमिनल, ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे नॉमिनल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर है, उस केस में भी वी वांट दिस लाइन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द पाई। हम इसमें चाहते हैं ये भी पाई के नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट यूनिफॉर्मिटी कैन बी मेंटेन्ड। तो हम चाहते हैं वो इक्वल। अब हमारा, हमने कहा ये वाली लाइन जो हमारी, ये जो इक्वेशंस हैं, और यू कैन से जो हमारी ये लाइन है, ये जो एक्चुअल है, वेयर दिस इज ए टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर, दिस लाइन इज इक्विवेलेंट टू दिस पाई नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी दो इक्वेशंस हैं, ये जो दो इक्वेशंस हैं, दी टू इक्वेशंस आर और शुड बी इक्वल टू इक्वेशंस फॉर दिस। इसके लिए ये इक्वेशन, अब देखिए इसके लिए इक्वेशन लेंगे, अगर दिस इज IT, जैसे वहां से किया था, दिस इज IT, दिस IT इज, दिस वोल्टेज इज vi माइनस vj। देखिए ये करंट यहां से कितनी जाएगी, ये करंट ये प्लस ये, एरो दिखाई पड़ रहा है, ये कर्सर, हेलो हेलो, यस सर। एनीबॉडी? हाँ, ये कर्सर दिखाई पड़ रहा है, कर्सर जो मैं मूव करता हूं ऐसे हाथ से, ये दिखाई यस सर। पड़ता है? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। तो ये जो करंट है, दिस करंट और दिस करंट विल बी इक्वल टू दिस करंट IT, सो IT विल बी इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस, और ये वाली करंट कितनी होगी, दिस vi माइनस vj डिवाइड बाई y1, ओके, सॉरी, vi माइनस vj मल्टीप्लाइड बाई y1, और ये कितनी होगी, ये वाली करंट yi इंटू y2, ये इक्वेशन बन गई। ऐसे ही इधर से लिखेंगे IT डैश, तो ये IT डैश, ये करंट कितनी होगी, दिस प्लस दिस, ये कितनी होगी, ये वाली करंट कितनी होगी, vj माइनस vi डिवाइडेड इंटू y1, और ये bj इंटू y3, ये बन गई। इसको हमने vi, इसको ओपन किया, vi ऑन दिस साइड एंड bj हियर vi एंड bj, ये these two equations if you compare with these equation, देखिए इसको आप कंपेयर करें, तो इसको अगर आप कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे अभी vi vj है, यहाँ भी vi vj है, सिमिलरली यहाँ भी vi vj है, यहाँ भी vi vj है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ABCD जो पैरा ABCD, इसको कंपेयर करेंगे, एंड आफ्टर कंपेरिजन वी कैन फाइंड दिस y1 इज इक्वल टू yt बाई a। yt क्या था, ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस, और a क्या था, टेप चेंजिंग रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कितना उसमें ट्रांस रेशियो चेंज किया है, एंड y1, ये हमारा, हाँ, y2 की वैल्यू, ये y1 का निकल आया इन टर्म्स ऑफ y1, इफ वी नो द y1 फ्रॉम हियर, वी नो द y2, वी नो द y3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी नो हियर एवरीथिंग, वी नो y1 y2 y3 इन टर्म्स ऑफ yt प्लस a क्या है, उसका टेप चेंजिंग रेशियो है, और ये y1, और yt क्या है, yt इज द ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस है। तो अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन में वो ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है जो टेप चेंजिंग टाइप है, नॉमिनल नहीं है, तो हम उसको भी इस पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके। So in this way, finally we reached on a conclusion that the whole network, this network, either tape changing transformer is connected or nominal transformer is connected, we can convert this network into this form. Okay, is this clear? And now here, say on this side, at each bus here you see, ये हमारा parallel
कनेक्शन है, या इसका भी ये पैरेलल कनेक्शन है, इसका भी पैरेलल कनेक्शन है, ये ग्राउंड। सो वी कैन all these admittances can be grouped to be 1 इन सभी एडमिटेंसेस, सभी ये किस में कनेक्टेड है, 1 और 0 के बीच में कनेक्टेड है, यही 1 और 0 के बीच में कनेक्टेड है, यही 1 और 0 के बीच में कनेक्टेड है। सो टोटल एडमिटेंस विल बी द सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस। ऐसी तो होता है कि अगर हमारा एडमिटेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसकी कुछ एडमिटेंस होगा पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करके एक बना सकते हैं, इसको बन के ऐड बना सकते हैं। ओके, सिमिलरली हियर, तो जितनी भी पैरेलल में हर एक बस पे जितने भी पैरेलल में एडमिटेंसेस कनेक्टेड हैं, दे कैन बी ग्रुप टू बी 1, उसको हम एक बना सकते हैं लाइक दिस। मींस देखिए वो सेम है, इट इज ए सेम बस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नोड में, नोड नंबर 1 2 3 4, वो वहां भी बस नंबर 1 2 3 4, और 1 और 0 के बीच में जो कनेक्टेड था उन सबको मिलाकर y10। सिमिलरली 2 और 0 के बीच में जितनी एडमिटेंसेस कनेक्टेड था उन सबको y20, जितनी भी एडमिटेंसेस 3 और 0 के बीच में y30 y40। ओके, और ये हमारी एडमिटेंसेस ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी, 1 और 2 के बीच में क्या था। तो होल नेटवर्क वी हैव कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। ओके, तो जो हमारा 4 बस सिस्टम था वो हमने इसमें कन्वर्ट, जितनी बसेस थी, देखिए उसमें अगर 4 बस थी तो यहाँ ये 4 नोड्स हैं अदर देन द रेफरेंस नोड। मतलब क्या हुआ, टोटल नोड्स हमारे इस लम्प्ड नेटवर्क में नंबर ऑफ बसेस प्लस 1 होगा, और यू कैन से नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स अदर देन द ग्राउंड नोड। तो जितनी इसमें नोड्स हैं, जितनी इसमें नोड्स हैं उतनी वहां बसेस हैं, और ये एक्स्ट्रा हमारी रेफरेंस बस और है। ओके, तो ये हमारा उसके इक्विवेलेंट बन गया। एंड व्हाट एल्स, हमने यहाँ एक्स्ट्रा और काम क्या किया है, एक्स्ट्रा काम किया है कि वोल्टेज सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द करंट सोर्स। देखिए हमेशा आप यू नो, सपोज some voltage source है V voltage and some impedance is connected in series, voltage V and some impedance connected in series, it can be made equivalent to a current source। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर करंट, जब हमने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, देन करंट विल बी इक्वल टू BY/Z, और इंपीडेंस उसके पैरेलल में आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ भाई, यस सर, यस सर। हाँ, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया या, तो ये इस तरह से आ गया। ये देखिए, इफ इट में हैपन इफ दिस सोर्स इज नॉट देयर, अगर सोर्स है ही नहीं तो ये 0 ओपन हो जाएगा, अगर है तो यहाँ वैल्यू आएगा, क्योंकि सभी नोड्स पे हमेशा सोर्स होना जरूरी नहीं है। जब आप आगे देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें हर एक नोड पे आपका सोर्स नहीं मिलेगा, तो दैट वैल्यू विल बी 0। नाउ हाउ टू सॉल्व इट? अब इसमें नोडल एनालिसिस कैसे लगाते थे? नोडल एनालिसिस मींस दिस करंट I1 इज द करंट इंजेक्टेड, इट इज नॉट द जनरेटेड करंट, इट इज नॉट द जनरेटेड करंट, इट इज द इंजेक्टेड करंट। इंजेक्टेड करंट क्या होता है? जनरेशन माइनस लोड। अगर यहाँ पे इस बस पे जनरेशन भी कनेक्टेड है, जनरेटर भी कनेक्टेड है, लोड भी कनेक्टेड है, तो जनरेशन माइनस लोड के बाद जो नेट करंट हुई, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्टेड करंट। सो I1 इज द करंट इंजेक्टेड एट बस नंबर 1, I2 इज द करंट इंजेक्टेड एट बस नंबर 2, I3 इज द करंट इंजेक्टेड एट बस नंबर 3, सिमिलरली I4। तो हमने देखिए इसके लिए I1 दिस करंट इज इक्वल टू द क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, ये करंट क्या होगा, ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट, और ये करंट कितनी होगी, V1, इसका वोल्टेज V1 माइनस V2 इंटू दिस। ओके, V1 माइनस V2 इंटू दिस। ओके, एडमिटेंस, और ये कितनी होगी, V1 माइनस V3 इंटू दिस, और ये कितनी होगी, V1 माइनस V4 इंटू दिस। ओके, और ये कितनी होगी, V1 इंटू Y10। ओके, तो ये हमारी I1 हमने ऐसे लिख लिया, नोडल एनालिसिस लगा दिया। ओके, तो ये नोडल एनालिसिस लग गया। सिमिलरली I2, यहाँ नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो दिस करंट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 3 करंट। तो ये क्या होगा, V2 माइनस V1 इंटू दिस, ये क्या होगा V2 माइनस V3 इंटू दिस, और ये क्या होगा V2 इंटू Y20। तो ये लग गया।
ओके, नोडल एनालिसिस। सिमिलरली I3 ये वाली करंट, ये ना I4, सेम फॉर्मूला एज वी डू इन द नोडल एनालिसिस, हम इसको ऐसे लगाते हैं। ओके, ये जो हमारी चार इक्वेशंस थी, ये चार इक्वेशंस थी, देखिए इसको वी कैन रीअरेंज। यहाँ देखिए B1 ये है, B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी, B1 एक जगह ले लेंगे, देन B2 ये है ओनली, B3 यहाँ है, देन B4 इज दिस। ओके, सिमिलरली इसमें V1 ये है, V2 ये है, ये भी है, देन B3। तो we rearrange in such a way I1 is equal to B1 into something, then B2 into something, then B3 into something, then B4. Similarly, I2 is equal to B1 into something, B2 into something, then B3 into something, then B4 into something. तो हमको इसको रीअरेंज करने के बाद में, आफ्टर रीअरेंजिंग राइटिंग इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म, इस तरह आएगा I1, I2, I3, I4 and V1, V2, V3, V4. So this what is this? I1, I2, I3, I4 are the current injected at bus number 1, current injected at bus number 2, current injected at bus number 3, current injected at bus number 4. And what is this? Voltage of bus number 1, voltage of bus number 2, voltage of bus number 3, voltage of bus number 4. So we can say injected currents are related with the voltage of the buses through this matrix. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नेटवर्क था, जो हमारा ऊपर ये नेटवर्क था, यू कैन सिंपली से ये वाला जो नेटवर्क था, दिस नेटवर्क, देखिए आपको चीजों को, अगर ये छोटा नेटवर्क है आप सॉल्व कर सकते हैं, बट लेटर ऑन व्हेन दिस नेटवर्क इज ऑफ 100 बसेस, अगर आपके 100 बसेस हैं और 150 ट्रांसमिशन लाइन है, यू कैन नॉट सॉल्व इट बाय द with the help of hands, manual calculation, you cannot do it. So you have to represent this into form of a, आप क्या करेंगे, इस नेटवर्क को आप मैट्रिक्स में के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो व्हाट वी डिड, हमने वो नेटवर्क था उसको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये नेटवर्क के मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। वंस वी रिप्रेजेंटेड ए पावर सिस्टम नेटवर्क इनटू ए मैट्रिक्स फॉर्म, वी कैन सॉल्व इट इजीली, फिर हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड से I and this is Y into V, this is called the capital Y or we can say Y bus. तो इसको हमने Y bus का, it is a first element, diagonal element Y11, it is a Y12, it is a Y13, it is Y14, इसको Y means first row first column element, first row second column element, first row third column element, first row fourth column element, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया Y11, Y12, Y13 like this. Y11 means Y11, Y22, Y3 ये डायगोनल एलिमेंट्स है। Y11 मींस दिस, Y11 मींस दिस। तो अब इफ यू सी दिस, इसको अगर आप देखेंगे, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इससे देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अब ये नेटवर्क मैट्रिक्स, ये बाई बस लिखने के लिए हमें इस कैलकुलेशन की या इस इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, दैट वी नीड नॉट टू रिप्रेजेंट। देखिए हमने पहले क्या करेंगे, इसको इससे ये इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन लिखें और फिर मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट करें, सिंपली हम इसको डायरेक्टली, वी कैन डायरेक्टली राइट दिस फ्रॉम हियर। इससे ये जो हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क से हम मैट्रिक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेयर यू कैन से Y11, ये जो है Y1 इज द, देखिए Y11 क्या है, Y11 क्या है, इन सब का सम, इसका दिस Y12, Y13, Y14, Y10, अगर आप इसको यहां देखेंगे मींस Y11 इज द सम ऑफ दिस, ये Y12, ये वाला Y12, Y13, Y14 और ये Y10 मींस diagonal element Y11 means first diagonal element will be sum of all these admittance, second diagonal element is the sum of all these elements, 2 पे Y22 is the sum of all these, Y33 is sum of all these, इन सबका sum, Y44 is the sum of all these element, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट क्या है, Y12 था ना, 1 और 2 के बीच में एडिशन Y12 था, बट इट इज माइनस ऑफ दिस वैल्यू, इट्स माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज here, Y12 is minus Y12. इसका मतलब क्या हुआ, just by seeing the network above we can directly write this, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं।
So this is called the Y bus. We can directly write it. Here you can say it is also written Yij is the minus admittance between I node to Z node. I is the current injected at bus number this. If it is a Y same Y11, Y2 diagonal elements, then we can say all the admittances connected at node I. तो इस तरह हमने ये Y bus बना लिया. This Y bus, अब ये Y bus भी जो बनाया, Y bus inverse is called as a Z bus. क्योंकि sometime voltages are given, we have to calculate the current. Sometime current is given, we have to calculate the voltages. So we can write Y bus inverse is equal to Z bus. Now even if देखिए नेटवर्क, वी नो हाउ टू कन्वर्ट नेटवर्क इनटू द वाई बस मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें ये पता लग गया, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं. लेकिन अब सपोज करिए आपको 100 बस का सिस्टम है और 150 ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो हमें बाई हैंड कैलकुलेट करें नेटवर्क, फिर हमने सिस्टम को समझाएं. देन अगेन इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बट इफ वी राइट द एल्गोरिथम मीन्स अगर हमने कंप्यूटर में एक एल्गोरिथम लिख दिया, देन इट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड. सो हियर इट इज एल्गोरिथम ऑफ फॉर्मिंग द वाई बस. मीन्स हमने किसी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में, मैटलैब में या और किसी फोटॉन में, पास्कल में, व्हाटएवर लैंग्वेज वी नो, उस लैंग्वेज को यूज करके हमने डायरेक्टली ये बना सकते हैं. तो हमने क्या करते हैं, सबसे कोई भी लैंग्वेज ले लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेक ए मैट्रिक्स ऑफ n बाई n. n क्या है, नंबर ऑफ बसेस. अगर हमारे पावर सिस्टम में 10 बसेस हैं तो 10 बाई 10 का एक मैट्रिक्स ले लें विद ऑल एलिमेंट 0. अगर हमारे केस में क्या था, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4 बसेस था, तो 4 बाई 4 का एक मैट्रिक्स ले लें विद ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. मीन्स फॉर ये हमने टेक ए मैट्रिक्स ऑफ n बाई n ऑर्डर विद ऑल एलिमेंट्स 0 वैल्यू. तो ये ले लिया. हमने क्या एल्गोरिथम लिख रहे हैं. नाउ कंसीडर वन ब्रांच एट ए टाइम. अब जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उसको एक एक करके लेते जाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स और ब्रांचेस. क्योंकि हमने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें क्या था, ब्रांचेस थी, एक बस से दूसरे के बस में एडमिटेंस कनेक्ट था और 1 और 0 के बीच में एडमिटेंस कनेक्ट था. तो एक एक करके हमने ब्रांच लिया. मीन्स ब्रांच मीन्स क्या, आई और पी के बीच में. आई और पी मीन्स सभी ले लिया, कोई पर्टिकुलर ब्रांच लिया जो आई और पी के बीच में कनेक्टेड था. तो आई और पी के बीच में पहले तो हमने ऑल एलिमेंट्स आर 0, आई और पी के बीच का एलिमेंट भी 0 था. ये ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो आई और पी के बीच में भी 0 था. तो ये 0 तो था ही, उसमें वाई आई पी ऐड कर दिया. नो सॉरी, दिस इज नहीं, दिस वाई आई पी मीन्स माइनस वाई आई पी. ओल्ड ये 0 था, क्योंकि क्या था, 1 और पी के बीच का जो एडमिटेंस था, हमने आपको देखा था ऊपर, माइनस हो जाता था. ये y12 इज नथिंग बट माइनस y12, कैपिटल Y12. मतलब फर्स्ट और 2 जो एलिमेंट है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एलिमेंट है, 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस थी उसका माइनस साइन था. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक करके एलिमेंट लिया, एक ब्रांच ली, तो जो ओल्ड वैल्यू था उसमें ये माइनस कर दिया. पी और आई के बीच में भी यही कर दिया, आई और पी और आई के बीच में यही कर दिया. सेम देखिए यहाँ 1 और 2 के बीच में जो है वही 2 और 1 के बीच में. अच्छा, और हाँ, और जो आई और पी है ये हमारा इसमें भी ऐड होगा, क्योंकि वाई आई क्या था इसमें, देखिए वाई आई पी इसमें भी तो था. ये 1 और 2 यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ भी ऐड हो रहा है. तो 1 और 2 मीन्स 1 में भी ऐड होगा, 2 में भी है. मतलब y12 क्या है, y11 में भी यूज होगा, y22 में भी यूज होगा. ये y2, ये इसकी वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो हमने y11 और y22 यहाँ ऐड कर दिया, y में भी ऐड कर दिया, ypp में भी ऐड कर दिया, यहाँ माइनस किया था. तो ऐसे जितने भी हैं हम उसको एक एक करके लेते जाएंगे और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये ऐड करते हैं. टेक ऑल सच ब्रांचेस, देन कंसीडर द ब्रांचेस 1 by 1 कनेक्टेड बिटवीन द ith नोड एंड रेफरेंस नोड. अभी तक क्या था, आई और पी के बीच में कनेक्टेड था, अब आई नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है. मीन्स y10, तो ये केवल 10 है, तो इसमें केवल आई में कनेक्ट होगा, तो ये आई इस तरह. तो इन दिस वे वी गो ऑन सर्कुलेटिंग. सभी आई और पी के बीच की ब्रांच ले ली, फिर जो सेम ith नोड से ही कनेक्टेड है, आई कैन बी ऑल द बसेस, y1 1 2 3 4 ऑल. तो ये y11 y22 y33 y44 ये सब मॉडिफाई हो जाएंगे
with the help of the for loop. तो हमारा ऐसे बाई बस बन जाएगा. तो in this way we can form the बाई बस. तो इस तरह हमने क्या किया, कोई भी नेटवर्क था उसको हमने बाई बस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इट इज इजी टू राइट द फॉर्मेशन ऑफ द बाई बस. और भी मेथड है विद द हेल्प ऑफ द टोपोलॉजी. यू माइट बी स्टडीइंग इन द नेटवर्क थ्योरी, वी कैन राइट द बाई बस. टोपोलॉजी में भी आपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी में आपने पढ़ा हाउ टू फॉर्म द बाई बस, and with the help of that also we can form the बाई बस. So once we form the बाई बस, then we can use this बाई बस to solve the power flow analysis. तो हमारा आज के लेक्चर में दिस इज द पर्पज कि हमने नेटवर्क को बाई बस में लिख दिया. नाउ हाउ वी विल यूज दिस बाई बस एंड हाउ वी विल सॉल्व द नेटवर्क so that we can obtain, and in the as we told that we can solve the network